So, how are you? How was your day? My day was good. 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 I'm fine. How was your day, ma'am? Very nice. Very good. Yeah. And today you're smiling a lot, Atulji. I really like it. Yes. You're feeling Like, nice, positive. yes, I'm feel. I said no. Past from 1 week, I can see some change in me. And अगर मेरे फैमिली में कोई थोड़ा सा भी नेगेटिव बात करता है, ट्राई टू चेंज लाइक तुम ऐसा सोच के देखो. तो I'm trying to change. Hmm. और वो जो कल का सेशन था अबाउट द हेल्थ, Hmm. वो ऐसे तो लाइक इट वाज फॉर मी. Hmm. Okay. इट इज रियली नाइस. Hmm. Okay. और जो आपने मेडिटेशन करवाया था, आई ट्राइड इन द Hmm. मॉर्निंग. इट वाज रियली नाइस. I felt very nice after doing that. Okay. Thank you for that. Thank you. And see, now that visualization or meditation that you call is so important that you have to think of any one item or all those body parts or your health whenever you're looking at your note. Okay. If I just asked you, or if Rhonda Byrne just asked us to write the note and look at it, आपको वो feeling नहीं आती. Okay? Once you start Yes. thinking of the importance of something, then you realize that then proper feelings are generated. That's why Yes. that visualization meditation was very essential. Okay. Like few days back before joining the session, 1.5 months back, Mhm. my wife used to say, "Chalo, let's take a picture." Mm. I said, "No, I don't like." Mm. So now after from 1 week, I'm thinking, I'm so beautiful. Why I should not get it kissed? So I can Excellent. see some changes in me. Yes, definitely. And you were saying that you are trying to tell others to speak positive, be happy. What you do is currently, because we have just started the session, you just focus on yourself. Okay? If people are receptive, then it's okay. But suppose you So are telling them something and they are not ready to change or listen to you, then what will happen? आपको नेगेटिव लगने लगेगा, बोले नहीं इसको तो समझ नहीं आ रहा है. We don't want to go into that. Okay. no, I like to say, like after the session was over, Mm. I say my mom कि आज ये सीखा है. I explain her कि ऐसे ऐसे आज ये था, हमको ये करना चाहिए instead of doing this. तो Mm. उनके साथ शेयरिंग कर लेता हूँ. Then she's little like positive kind of thing. Okay. Good. Very nice. Good. Very nice. Very nice sharing. Thank you, Atulji. And Acha, Thank you. are you feeling any changes in your relationships also? Like my relationships were very well. Okay. Very good. Before that, like past from before 1 week, Hmm. I was like little angry man kind of thing. बच्चों के ऊपर गुस्सा कर देना. Hmm. Now I'm not doing making angry on them. They whatever they want to do do. I try to explain them, and I can see this in what मैं जो प्यार से बोलता हूँ ना, they do my work also. They बेटा ऐसे मत करो please. So Hmm. they don't do. And after that I say thanks. They feel पापा आप thanks क्यों बोल रहे हैं? Huh. Okay. Okay. Very So nice. I can see changes. Hmm. Okay. Thank you, Atulji. Thank you for your sharing. Thank Just you, keep ma'am. practicing the way you are. Okay. Yes. Yeah. Yes, Kushi, you have a question? Thank you. Yes, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Yes, ma'am. Yes, Kushi. Ma'am, so basically the thing is that whenever I make my vision board, I want to ask you, the thing is that this is the third time I am making it, because first time when I made it, my mom, she tried to do something, she tried to make some drawing, so it got spoiled. Then again I made it. So then I thought, "Nahi, this is not made very well. It was looking a little untidy." So third time I've made it, and now fortunately it's looking very neat. Okay. So So, but I am Kushi, let me tell you, there are many new joinees over here. Okay. okay. So they don't even know about vision board. Okay. So I'm Nahi, hmm. nahi, so I am asking ki since I am making this for the third time, so what does this basically mean? That am I going to have a lot of difficulties No, fulfilling them? See, whatever you feel will happen. Okay. If you are feeling you're making it thrice and difficulties will happen in the actual thing also, then it will happen because you are kind of manifesting. You are giving it that fear, that worry. You are fueling it with that feeling. Okay. So don't do that. If you feel this is the best, forget about that. The other two were trials. It's okay.
इट्स परफेक्टली फाइन, वी कीप ऑन इम्प्रूविंग ना. जो फर्स्ट ड्रीम लिस्ट बनाई थी हमने, उसमें तो हम लोग को यही नहीं पता था ना, वांट नहीं लिखना है, विश नहीं लिखना है. तो यू डोंट स्टार्ट वरिंग अबाउट अरे वो मैंने लिख दिया अब क्या होगा. नो, just focus on the current one. If you feel this is what will make you happy each time you see it, each time you visualize, then stick to that. Just focus on this. Don't think about other things. Okay. Now it's looking really nice. Okay. Now it's, I look at it again and again. Very good. So now what you will do is on day 13, okay, today's day 5. On day 13, you will have to share it in the group and everyone will give positive energy to it. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. So someone else who did the practice, or if you feel some changes like Atul ji shared कि life में थोड़े positivity आ रही है and you want to share it in the group, कुछ अच्छा लग रहा है, so please share. प्रिया जी बोलूं? Yes, Neelam ji. So sweet, so happy to see you. Yeah. बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं प्रिया जी लाइफ में कि पॉजिटिव सोचना. एक बार ठीक है, पहले सोचती थी लेकिन अब तरीका थोड़ा सा बदल गया है. हर चीजों को देखने का, सोचने का तरीके थोड़े से बदल गए हैं. थैंक यू बोलने का कोई निश्चित समय नहीं होता. थैंक यू बोलने का कोई निश्चित समय नहीं होता. प्रिया जी यह सीखा नहीं था यदि आपने बताया ना होता. Thank you Neelam ji, thank you. Yes, thank you so much. Really sweet of you. आ गया प्रिया जी और बड़ा मजा आता है. Thank you. Yes, happy to have you back Neelam ji. And before, ऐसा नहीं है कुछ कि suddenly Neelam ji has started doing this. She has done our session once and she like she'll keep sharing, the way she did just now. Thank you Neelam ji. Yeah. Welcome. Yes, so someone else wants to share how you felt the whole day. Did you kept thinking about your childhood, the energy that you had, or some health things that you were so charged up, always smiling, happy, not bothered about when you fell on the ground while playing with your cousins, sisters, friends. कुछ आपको बातें याद आ रही थी and you were thinking, yes, कितने healthy थे हम. I'm so grateful for that. Were you feeling like that? That your skin was glowing, your eyes were shining, and your hair was awesome. कुछ ऐसे आपको आ रही थी feeling? And you were being grateful for that. हम लोगों ने अपने बचपन में छत पे बहुत खेला है, टेरेस पे. हाँ. पूरे घर के जितने मेंबर्स होते थे ना, सब चले जाते थे हम लोग छत पर. पूरे हमारे भैया भाभी सब चले जाते थे. वो सब मोमेंट किया. ओके, वाओ, वेरी गुड. हाँ, यस, आप जब बोल रहे हो ना, हमको भी याद आ रहा है. हाँ, हम लोग भी छत में जाके बहुत खेलते थे. यस, उन सब चीजों को बहुत याद किया. ओके, वेरी गुड. यस, तो अब आप देखिए, जिसको भी हेल्थ इश्यूज हैं या आप चाहते हो हेल्थ में इंप्रूवमेंट करना, तो जितना ज्यादा आप अपने पास्ट की हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होगे, ठीक है, जो अच्छी चीजें हम अच्छे सिस्टम्स हमारे अच्छे से जो वर्क कर रहे हैं, हमारे बॉडी पार्ट, जितना ज्यादा आप उनके लिए ग्रेटफुल होंगे, उतनी ज्यादा आपकी हेल्थ इंप्रूव होने लगेगी. ठीक है, आप देखिए, कोई भी ट्री होता है, जो कोई भी पेड़ होता है, वो जो जितना ज्यादा ग्रीन, फ्रेश तो नहीं, फ्रेश ही होते हैं सारे ट्रीज, तो जितना ज्यादा ग्रीन और लगता है कि हेल्दी ट्री है, उसकी रूट्स कैसी होती है? हमको तो दिख नहीं रही होती है, बट हम लोगों ने पढ़ा है साइंस में. आपको क्या लगता है उसकी रूट्स कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, ऐसा आप कभी आप निकालो, आप उस पेड़ को निकालना चाहोगे, पेड़ को तो निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, चलता ही नहीं है, उसको काट के लोग हटाते हैं, राइट. उसकी रूट्स लेकिन फिर भी रह जाती हैं और वो धीरे धीरे बाद में हटती हैं. या और एक पेड़ जो जल्दी अपरूट हो जाता है, वो कैसा ट्री होता है? हाँ, उसकी रूट्स वीक होती हैं, उसकी सॉइल वहां की लूज हो जाती है, बेसिकली वो उतना ग्राउंडेड नहीं होता है. जितना लोग बोलते हैं जितना पेड़ ऊपर जाता है उतना ही नीचे जाता है, राइट. दैट इज अ स्ट्रॉन्ग हेल्दी ट्री. तो अब जो हमारी रूट्स हैं, हाँ, वो क्या है? हमारा पास्ट, जो हमारे पास्ट का ग्रैटिट्यूड है, वो हमारी रूट्स हैं. तो वो आपकी रूट्स स्ट्रॉन्ग कैसी होंगी? वो तभी स्ट्रॉन्ग होंगे जब आप उनके लिए अच्छे से ग्रैटिट्यूड करोगे. जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड आप अपने पास्ट की चीजों के लिए करोगे, इन एनी एरिया, बी इट योर रिलेशनशिप, बी इट योर हेल्थ, बी इट योर फाइनेंशियल्स, उतना ज्यादा आपके पेड़ में फल आएगा, राइट. पेड़ का फल मतलब ये नहीं कि वी बिकम हेल्दी वेल्दी, नो, डेफिनेटली हेल्दी वेल्दी, बट नॉट इन द सेंस जो हम लोग पहले बोलते ना, वी आर बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट एंड वील से बहुत हेल्दी लड़की है, वी विल नेवर से मोटी लड़की है किसी के बारे में. तब ऐसा लगता था वैसे कैसे मोटी, बहुत हेल्दी हो तुम, बट आप सोचो वो कितना सही था.
हेल्दी बोलना चाहिए, मोटी नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज क्या होता है जो बोलता है वही होता है, राइट? आप किसी को मोटी बोलोगे या बोलोगे कैसे लग रही है, लाइक व्हाटएवर, आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज आई यूज्ड टू हियर लॉट ऑफ दैट, बट बाद में लोग हमको हेल्दी बोलना शुरू हो गया, आई एक्चुअली बिकेम हेल्दियर। तो आपको यही सोच के अच्छी बातें करनी है, और हमारे पास के हर एरिया में जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, वेदर इट इज योर हेल्थ, फाइनेंशियल्स, योर रिलेशनशिप्स, जितना ज्यादा आप पास्ट के अपने ब्लेसिंग्स के बारे में ग्रैटिट्यूड करेंगे, ठीक है, व्हाटएवर वी हैव एज अ ब्लेसिंग, जितना ज्यादा उसके बारे में आप ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना अच्छा आपके उस एरिया में तो होगा ही होगा, बाकी एरिया में भी होगा, ठीक है। ये हमने पढ़ा ना, आप एक रिलेशनशिप के लिए थैंकफुल हो रहे हो, आपकी बाकी रिलेशनशिप्स भी अच्छी हो जाएंगी। आप एक हेल्थ पार्ट माने बॉडी पार्ट के लिए थैंकफुल हो रहे हो, बाकी ऑटोमेटिक धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा, ठीक है। आज का जो चैप्टर है वो बहुत बहुत अमेजिंग चैप्टर है। तो अगर किसी और को कुछ क्वेश्चन या शेयरिंग नहीं करनी है अबाउट द प्रैक्टिस, वी विल स्टार्ट with the warm up and then we'll start with the reading. Okay? Yes? Okay, no question? Yeah? So cool. तो अच्छा, अब आप बताइए, हम लोग इतने दिन से फीलिंग कर रहे हैं। अच्छा नहीं, फर्स्ट लेट्स डू द वार्म अप देन वील स्टार्ट। या सो अच्छा, वार्म अप हम लोग करते हैं, उसको करने के बाद आपको कैसा लगता है? I just want to know. हाँ, एनर्जेटिक तो नीलम जी हम लोग तो कर रहे हैं थोड़े दिन से, न्यू जन से पूछ रहे हैं, आपको फनी लगता है करके? नहीं, बचपन की याद आ जाती है। याद आती है ना, तब ठीक है, तब ठीक है। अच्छा, अगर फनी भी लग रहा है ना, तो फनी कैसी फीलिंग है, नेगेटिव की पॉजिटिव? यस, तो चलेगा। फनी से शुरू करेंगे ना, हैप्पी और अच्छे से लगता ही जाएगा, ठीक है। बिकॉज द होल गेम, if you talk about game, it is all about being positive and happy, ठीक है। तो जिसको करके खुशी मिले वो करना चाहिए, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ समवन एल्स, या दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको ऐसे ऐसे करके अच्छा लग रहा है, आप ऐसे करिए, मिर्ची लग गई, यू नो, जिसमें भी करके आपको लगता है, लाइक यू नो, फनी थिंग्स, डू एज मच फनी थिंग्स एज पॉसिबल इन लाइफ, बिकॉज यू नो अभी हमने एक न्यू वर्ड सीखा, ऑफ कोर्स आप लोग को हो सकता है पहले से, योलो। यस, आई वाज ट्राइंग टू रिक्रिएट, एवरीवन नोज व्हाट इज योलो? नो, तब ठीक है, वरना मेरे को लगता है मेरे कोई काफी जानने की अभी बाकी है चीजें। योलो इज यू ओनली लिव वंस, या सो इट्स योलो। एंड जैसे फोमो में मेरे को अभी पता चला, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो हमको लगता था योलो ज्यादा अच्छा है, फोमो तो चलो ठीक है। फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट, योलो इज यू ओनली लिव वंस। आई थिंक यंगस्टर्स को पता होगा, खुशी चली गई उसको पक्का पता होता, हम लोग भी यंगस्टर्स हैं, बट हम लोग थोड़े से सीनियर यंगस्टर्स हैं, या तो योलो इज यू ओनली लिव वंस। तो जितना ज्यादा हम लोग ये सब सोचते रहेंगे ना, क्या कोई सोचेगा, क्या करेंगे, अब नहीं करना चाहिए, अब ये एज हो गई, एकदम ही मत सोचिए। कोई, हम सेशन में हमेशा यही बोलते हैं, हम 25 इयर्स एट हार्ट, ठीक है। तो आप भी अब अपनी एज सोच लो कि आपकी एज क्या है, एंड स्टार्ट फीलिंग एंड लिविंग लाइक दैट, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप वो वाला जो एक सॉन्ग है ना, बूढ़ी घोड़ी लाल गम वाला, वैसा करने लगो, बट क्यों नहीं, अगर आपका मन कर रहा है तो बिल्कुल वैसे करिए। लोगों के बारे में हम लोग सोचेंगे, लाइक वो है ना, तो हम लोग उनके बारे में सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे, तो आप बिल्कुल वही करिए जो आपका मन हो, बट स्टे हैप्पी, बी फनी, यू नो, बी व्हाटएवर यू वांट टू बी, बट बी इन ग्रैटिट्यूड। यस, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर 10 फिंगर्स, एंड जितना अच्छे से आप जोर से बोलेंगे उतना अच्छा आपको फीलिंग आएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little. 1 little nose. Faster. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, 2 and 1 little ears little. and 1 little nose. Yes, perfect. Yes. So before we start with the reading, okay, I want to share something which is very important. Yeah, can you see this screen? Which one? Yeah, this chart. Did you notice this in the Secret movie? जिसने भी Secret movie देखी है यहाँ पे, आपने ये चार्ट देखा था? उसमें was just there for a few seconds or maybe some minutes. ये एक फीलिंग्स चार्ट है। आप देखिए, ये जो इंसान है एकदम सैड, दुखी सा नीचे बैठा हुआ है, एंड ये एक हैप्पी पर्सन है, और यहाँ पे सारे जो नाम लिखे हुए हैं हम लोग दूसरे वाले पिक्चर में देखेंगे, these are bad feelings,
and these are good feelings. And whenever we say line, ठीक है, above the line, below the line, हमको ये line देखनी है. हाँ, अच्छा, अब आप देखिए ये एक तो ऐसे कोन शेप में है. हाँ, तो इधर आप देखिए बहुत डार्कनेस है और यहाँ पे बहुत लाइट है. ये ओरिजिनल सीक्रेट मूवी में थी. अब जो हम आपको नेक्स्ट पिक्चर दिखाएंगे वो है दिस वन. कैन यू सी? ये रोंडा बर्न की सेकंड या थर्ड बुक होगी मे बी. पावर बुक में ये उसी चार्ट को बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख दिया सो दैट वी कैन मेक आउट उसमें लिखा क्या हुआ है. तो आप देखोगे ये है लाइन. इसके ऊपर के जो भी फीलिंग्स हैं, एंड दीज आर ऑल फीलिंग्स, satisfaction, hope, enthusiasm, excitement, passion, joy, gratitude, love. और यहाँ पे आप देखिए बहुत लाइट है. यहाँ पे लाइट है, आपको सन भी लग सकता है. एंड दिस इज वेयर योर ड्रीम, आपकी जो भी ड्रीम है, जिस भी एरिया में है, आपकी ड्रीम यहाँ है. अब हम लोग लाइन के नीचे आते हैं. इसके बारे में हम लोगों को बात भी नहीं करनी है हमारे लाइफ में. इनके नाम भी हमने लर्न नहीं किए हैं, ऊपर के हमने नाम भी लर्न किए हैं और आपको भी करने हैं. ठीक है, आप उसको ऐसे लर्न कर सकते. पहले हम लोग नीचे की बात करते हैं. बोर्डम, इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, वरी, क्रिटिसिज्म, एंगर, हेट, एनवी, गिल्ट, डिस्पेयर, फियर. और आप ये नीचे देखिए, ये एक तो ब्लैक गोला है. ठीक है, एंड इसमें भी अगेन आप देखिए, दिस इज अगेन लाइक अ, एक ये स्पाइरल टाइप का कुछ आपको लग रहा है. इट इज लाइक ऐसे ऐसे हो रहा है. तो आप देखिए कि जब एक तो फर्स्ट आपको ये लर्न करना होगा कि ये कौन से फीलिंग्स हैं. हमने उसको ऐसे लर्न किया है, शीप, JGL. ओके, तो आपको जैसे लर्न करना है आप वैसे लर्न कर सकते हो, बट यू शुड बी ओनली टॉकिंग, फीलिंग एंड थिंकिंग दीज थिंग्स, दीज इमोशंस, दीज फीलिंग्स. जब भी आपसे पूछा जाए हाउ इज द जोश, आपको यहीं से एक आंसर मिलना है मेरे को. ठीक है, नीचे के बारे में हम लोग को बात ही नहीं करनी. जब आपको ऐसी वाली चीज आए, मतलब आपने जो ड्रीम लिस्ट बनाई है ना, आप उससे दूर होते जा रहे हो, क्योंकि आपकी ड्रीम लिस्ट के आइटम्स यहाँ हैं. ठीक है, और जो आपको ड्रीम में नहीं चाहिए वो क्या है, वो आपका नाइटमेयर है. राइट, इफ यू वांट मनी फॉर अ हॉलिडे और आपको वो मनी नहीं मिलेगा, तो ऑफ कोर्स यू विल फील सैड. आप दुखी होगे, आप चिंता करोगे, ये सब करोगे. और क्यों? और आपका ड्रीम का ऑपोजिट क्या है, ये है. तो अगर आप नेगेटिव इमोशंस में रहोगे, आप बिलो द लाइन के फीलिंग्स में रहोगे, तो आपका सपना आपसे और दूर होता जाएगा. ये फीलिंग चार्ट इसको हम लोग बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने इसका प्रिंट आउट करके अपने रूम में लगाया हुआ है. ठीक है, ऐसे तो मेरे को अब लर्न हो गया है ये वाले फीलिंग्स. और नीचे के मेरे को नाम भी नहीं पता है, ऐसे पता है हमको, हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं. हम इतना बोर हो रहे थे कि क्या बताएं, कि हमने उसको कॉल किया और कॉल करके बहुत क्रिटिसाइज किया. जब क्रिटिसाइज किया तो पता चला कि वो मेरे बारे में भी कुछ बोलती थी, तो हम डिसअपॉइंट हो गए. जब हम डिसअपॉइंट, इट्स लाइक यू नो, यू कीप गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन. और जितना ज्यादा आप इन फीलिंग्स में रहेंगे, उतना ज्यादा आपका मैग्नेटिक पावर कम हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, अब आप ये भी देख रहे होंगे कि लव सबसे ऊपर है. तो ये वो लव नहीं है जो हम लोग इलू इलू या इस टाइप का लव नहीं है. ये दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ लव. आप देखिए लव के नीचे क्या है, ग्रैटिट्यूड. तो ग्रैटिट्यूड कितना पास है हमारे ड्रीम के. तो और ग्रैटिट्यूड में जितने अच्छे से फीलिंग्स आती हैं, जितनी पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं, बाकी सब में आएंगी, लेकिन ये सबसे पावरफुल है आउट ऑफ ऑल दीज, अपार्ट फ्रॉम लव. लव के लिए अभी हम लोग बहुत छोटे हैं, हम लोग को बहुत कुछ जानना समझना पड़ेगा, तब हमारे मन में वो वाली लव की फीलिंग आएगी जो इस चार्ट में है. ठीक है, ये लव हर टाइप का लव है. आप चाहे जो बोलो कि मम्मी के बीच में, यू नो, या हस्बैंड वाइफ के बीच में, किसी के लिए भी, इट्स लाइक अबाउट एवरीवन. दिस इज दैट काइंड ऑफ अ लव जो सदगुरु बात करते हैं गीता में, जिसके बारे में लिखा है. कृष्ण जी जिसको बोलते हैं कि जिसको देखो, लाइक यू नो, इट इज दैट काइंड ऑफ अ लव, कि आपको हर चीज में वो भगवान दिख रहा है, हर चीज से आपको प्यार है, हर इंसान से प्यार है. इट इज लाइक दैट काइंड ऑफ अ लव. उसमें हम लोग को पहुंचने में थोड़ा सा प्रैक्टिस और करना पड़ेगा. सो वी आर प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड. अब ये वाली जो फीलिंग्स हैं, इस फीलिंग में आपको रहना है. आपको दिन में चेक करना है कि आप क्या फीलिंग्स में हो. ठीक है, आप लोग हमेशा ऐसे कैसे हो सकता है, आपको एफर्ट करना ही पड़ेगा. लाइक वी डिस्कस यस्टरडे ना, कि डिस्कस क्या, ये पता ही हमको, जब वो ए का एक स्ट्रोक भी होता है, ठीक है, तो उसमें कितना टाइम लगाया था हम लोगों ने छोटे में. ए का वो एक स्ट्रोक, वो जो एंगल वाला स्ट्रोक था. आपने ड्राइविंग भी सीखी थी, तो क्या वो क्लच धीरे से जल्दी से छूट जाता था? वो बहुत जल्दी से छूट जाता था. राइट, दोज हु नो ड्राइविंग. हमने एक दो बार अटेम्प्ट किया है, वो मेरे बस का नहीं था. आई सेड टाटा, आई एम हैप्पी सिटिंग इन द कार एंड यू नो जस्ट रोमिंग अराउंड, हैविंग माय लंच, लुकिंग एट द सीनरी एंड टॉकिंग ऑन द फोन, सीइंग मैसेजेस. तो एक एक चीज में जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे,
उतना ज्यादा आप उसमें अच्छे होंगे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो जो ये वाला प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट हम लोग हर एरिया में अप्लाई करते हैं, तो हम लोग को ग्रैटिट्यूड में भी यही करना है। तो जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, डेलिबरेटली से थैंक यू, दैट वाज एन अटेम्प्ट फॉर प्रैक्टिसिंग। ठीक है, तो आपको डेलिबरेटली थैंक यू बोलना ही है, आपको डेलिबरेटली गुड फीलिंग्स में रहना ही है। अब बोलोगे डेलिबरेटली कैसे रहेंगे, आपको रहना ही पड़ेगा। आपको अगर अपने ड्रीम्स इतने प्यारे हैं तो आप ये अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, अगर हम रोटी का एग्जाम्पल बोलें तो जो मेन है उनके बारे में भी हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप लोगों को रोटी आपने बनाई है तो कितने बार में गोल बनी थी, कितनी आपने रोटियां बनाई है तब जाके गोल बनी थी। रोटी तो बनाते हैं बाद में, उसका जो आटा का जो कंसिस्टेंसी होता है उसमें कितना टाइम लगा था आपको सीखने में। चलिए बोले नहीं रोटी तो हमने बनाई नहीं, मेरी कुक बनाती है, हम तो चावल खाते हैं, प्लस अभी तो ग्लूटेन फ्री होता है तो रोटी भी नहीं खाते हैं। तो आप जो लाइनर लगाते थे, आपको कितने स्ट्रोक्स प्रैक्टिस करने पड़े थे लाइनर को परफेक्ट बनाने में। ठीक है, आप जिस फील्ड के बारे में सोचोगे, अगर आपको सिंगिंग भी आपने करी है, कितने बार आपने सारे गामा किया था तब जाके आपने गाना गाया सीखा था। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल काइंड, नॉट आवर बाथरूम सिंगिंग काइंड ऑफ सॉन्ग्स। कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है तब जाके आप एक चीज में परफेक्ट होते हो। परफेक्ट भी होने के बाद लोग कितना प्रैक्टिस करते हैं। लता मंगेशकर कब तक प्रैक्टिस की उन्होंने, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, नेम एनी पर्सन हु इज एक्सेलिंग, दे आर स्टिल प्रैक्टिसिंग। व्हाई? बिकॉज दे वांट टू कीप ऑन एक्सेलिंग, दे वांट टू कीप परफेक्ट। तो वैसे ही हमको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते ही रहना है। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एंड सेकंड चीज, आप लोगों की फीलिंग नहीं आ रही है तो इसमें बोलते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। आपको नई फीलिंग आ रही है, जैसे हमने पहले सेशन में बोला था, और ये लेकिन ये फैक्ट ही है। आप घर पे बैठे हुए हो, चिल कर रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, पॉपकॉर्न खा रहे हो, सडनली कोई गेस्ट आ जाता है, आपको मन नहीं है उनको ग्रीट करने का, बट वो आ गए, आप क्या करोगे, उनको मुंह बना के ही ग्रीट करोगे, आप फेक स्माइल से उनको ग्रीट करते हो, राइट। आप पार्टी में गए हैं, हाँ, वहां पे बहुत सारे लोग हैं, एक आंटी या एक अंकल, आंटी पे नहीं बोलना चाहिए, अंकल भी बीच में आने चाहिए, आपको अच्छे नहीं लगते हैं, वो हमेशा बोलेंगे जाओ बेटा ये ले आओ मेरे लिए, जाओ बेटा वो ले आओ मेरे लिए। आपको बचपन में ऐसे अंकल मिले? मेरे लाइफ में थे 2-3 अंकल इस टाइप, बहुत अच्छे हैं, बट वो हमेशा बोलते थे ये कैसा है, वो हमने नहीं खाया बेटा, प्लीज वो वहां से ले आओ। इन वेडिंग्स एंड ऑल ऐसा होता था ना। तो वो अंकल भी अगर आ जाते तो आपको स्माइल ही करते हैं, उनके सामने तो आप स्माइल करते ही हो। तो वैसे ही आपको फेक करना है, लेकिन करते रहना है आपको, फेक इट टिल यू मेक इट। जब आपने, मैं क्या रही हूँ, आपको छोटे में आपको मम्मा ने कोई क्लास भेजा होगा, आपको एकदम मन नहीं था करने का, बट आपको भेजते ही रहा, और आज आपकी वो मे बी फेवरेट हो गई है। नो, मे बी इट कुड बी कलरिंग, पेंटिंग, डांसिंग, some activities that your mom forced you to go and attend, and you have started loving it now. ऐसा हुआ है आपके संग में? तो आप देखिए, हम लोग को करते ही रहना है फॉर एवर। एंड हमने ये सेशन लास्ट ईयर किया था, और अभी भी मेरे को प्रैक्टिस करना है, अभी भी हमको प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है, अभी भी कितने बार मेरे को फेक इट टिल यू मेक इट करना पड़ता है। क्यों? हम अगर सैड हो रहे हैं, हम वरी कर रहे हैं, तो आई हैव टू फेक, फेक कैसे करते हैं हम, चिंता नहीं करना हमको, आई एम वेरी हैप्पी, आई फोर्स माई सेल्फ टू ग्रीट दैट अनवेलकम गेस्ट, कि नहीं मेरे को स्माइल करना है, मेरे को हैप्पी रहना है ना। आपने बहुत सारे ऐसे फॉरवर्ड पढ़े होंगे, आप जितना भी दुखी हो, जितना भी गुस्सा हो, इफ यू स्टार्ट स्माइलिंग यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। आपने इस टाइप के फॉरवर्ड्स पढ़े, आते रहते थे ना व्हाट्सएप में, बहुत उस समय नहीं समझ में आता था कि उसका एक्चुअल मीनिंग ये है, बट बिल्कुल ऐसा ही होता है। सो यू हैव टू स्टार्ट डूइंग ऑल दिस। ओके, सो नाउ आपको लगा होगा कि चैप्टर तो कुछ और है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, बिकॉज आज के चैप्टर में ये सारी फीलिंग्स आपको अच्छे से समझ में आएंगी, बहुत ज्यादा। ठीक है, यस सोनिया, यू हैव अ क्वेश्चन? या राइट, सी मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, मेरे आसपास अगर आवाज रेज भी हो जाती है, immediately tears start coming. If I get emotional also, tears starts coming. And those वो जब emotions आते हैं, those they get out of control. So आप बोल रहे हो जब ऐसा कुछ हो, आप बोल रहे हो अगर आसपास लोग अगर जोर से बात कर रहे हैं और उस टाइम पे फेक करो कि आप टेंशन नहीं कर रहे हो, I mean वो थोड़ा मुझे समझना पड़ेगा कि कैसे करूं उस टाइम पे। बिल्कुल, that's a really difficult situation. नहीं, कोई भी सिचुएशन चैलेंजिंग होती है, डिफिकल्ट है ही नहीं लाइफ में कुछ भी, एवरीथिंग इज अ चैलेंज। जब आप ये सोचोगे, ठीक है, तो बिल्कुल सब कुछ चैलेंज ही रहेगा। चैलेंज क्या होता है, कोई इंसान चैलेंज को कैसे लेता है, जब कोई किसी को चैलेंज कर देता है तो क्या होता है, आप एक्स्ट्रा एफर्ट लेते हो उसको करने के लिए, है ना। तो पहले तो हम लोग को हमारे ये वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना है कि हम लोग को सब चीज चैलेंजिंग ही है, सब चीज नहीं,
कुछ कुछ चीजें चैलेंजेस आती रहती है हमारी लाइफ में जिनको हम लोग इजीली ओवरकम कर लेते हैं, ठीक है, इजीली कर लेते हैं। वन, ये जो आपने बात बोली ये बहुत, ये आई थिंक यहाँ पे हम अगर हम आज जितने भी जन है अगर हम उनसे 80% लोगों से पूछेंगे ना, सब लोग यही बोलेंगे कि हाँ हम बहुत इमोशनल हैं, ये थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग है। सबके लिए ऐसे ही है, बट क्या है आपको ट्राई करना ही पड़ेगा और उसका सोल्यूशन आपको ही निकालना पड़ेगा। अभी अगर आप, अभी क्या होता है, आपको मन नहीं है किसी से आर्ग्यूमेंट करने का, व्हाट डू यू डू? या तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, यू विल गो आउट ऑफ द रूम, या आपको खुद अपनी ये सारी चीजें ढूंढनी होगी, है ना। हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे कमिंग चैप्टर्स में, और कमिंग चैप्टर्स में तो करेंगे ही, और कल एक चीज आपको बताएंगे, अगर टाइम रहा तो आज ही बता देंगे मूड शिफ्टर्स के बारे में। या जो आप बात बोल रहे हो ना, योर फीलिंग सैड, योर फीलिंग लो, अगर आपने कोई अच्छा जोक पढ़ लिया तो आपका मूड चेंज हो जाता है ना, या कोई आपने कपिल शर्मा देख लिया आपको अच्छा लगने लगता है ना, तो यू हैव टू फाइंड आउट सच थिंग्स व्हिच विल शिफ्ट योर मूड, okay, from being teary eyed, being upset, and you have to start thinking of something positive. You have to change your mood, you have to shift your mood from being upset to being happy, from being critical to being hopeful or something, whatever. ये हम लोग को एक लिस्ट बनानी हो, that I would be telling you maybe tomorrow or maybe after the session if time permits. तो आज आप ये फीलिंग्स पे ध्यान रखिए। अगर आपको पता है, सी क्या बोलते हैं, अगर प्रॉब्लम पता है तो उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी निकल आता है। तो इफ यू नो यू आर इमोशनल, सो यू नो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। तो ये भी आप ऐसा भी सोच सकते हो उसके बारे में। ऑलराइट, तो आई विल शेयर बोथ द चार्ट्स इन द ग्रुप ताकि आपको लर्न हो जाए, और आपको ये अपना अगर फोन का वॉलपेपर बनाना है या प्रिंट करके सामने लगाना है, तो दिस इज सपोज टू बी लर्न बाय ऑल ऑफ यू। ये सी सिर्फ ऊपर का लर्न करना है, नीचे का करना ही नहीं है, लेकिन आप पढ़ जरूर लीजिएगा, बिकॉज व्हेन यू फील दैट यू आर इन एनी ऑफ दीज फीलिंग्स मीन्स आप अपने ड्रीम्स से दूर जा रहे हैं। तो ये जो हम लोग जो भी ये ग्रैटिट्यूड सेशन कर रहे हैं 28 डेज का, वो फायदा कम करेगा या देर से करेगा या नहीं करेगा। अगर आप इसी जोन में रहोगे तो नहीं करेगा और आपका नाइटमेयर सच होने लगेगा। ओके, यस, या सो हु वांट्स टू रीड टुडे? Okay, yes, Madhuji, you can read. Yes. Yeah, please start. Madhuji, there is some disturbance. Is it a fan or something? Are you? Yeah, fan. Yeah, you can sit away from it a little bit if you feel it's okay. No, I'll switch on this, no problem. Okay. No, so I'm waiting for the text. Yeah. No one can see it? No, it's only day 5 magic money. So you have to read whatever comes in front of you. Okay? Yes. Yeah, please start. Day 5 magic money. Yeah. So here again, like always, we see what is there on this page. आप देखिए क्या लग रहा है आपको? It could be a study table. मेरे को किचन ही लग रहा है ये. This is a dining chair in the end. This is a counter. This is a kitchen cabinet or some cabinet. दूर में window है, light है, curtains भी यहाँ पे हैं कुछ. And on this counter, you see a purse which is stuffed with notes, which is stuffed with currency notes, and there is a lot of magic dust over it. ठीक है. अब आप देखिए, जब आप पैसे अपने खुद रखते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे तो नहीं रखते हैं. आप उसी साइज का पर्स लेते हैं जिसमें जितने पैसे हैं आपके अट जाएं. ऐसा सिचुएशन कब होता है? जब आपको किसी ने पैसे दे दिए सडनली और आपका पर्स इतना ही है और आपको रखना है उसके अंदर. ऐसा लग रहा है ये. फिर आप उसको ट्रांसफर करके अपने पास ले जाओगे, तो माने आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए सडनली. या इट इज लाइक ओवरफ्लोइंग विद मनी. तो आप देखिए ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है. We will find out in this amazing chapter. Yes. Gratitude is riches. Complaint is poverty. Christian Science hymnal. Yeah. If there's a lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful
about money can never bring more money to you, because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. Yeah, just Complaining. just one second. We'll just discuss all these feelings. आप देखिए, what is all this? They are all feelings. Yeah. So now Christian Science hymnal is telling us that gratitude is riches, complaint is poverty. ये हम समझ गए. हेल्थ में हमने भी कल यही पढ़ा था. Whoever is healthy is rich. है ना, उसको पता ही नहीं है कैसे. जो हेल्दी है उसको कोई, अभी देखिए जो हम नेगेटिव बोल रहे हैं हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, उसको कोई दवाई, डॉक्टर, हॉस्पिटल, किसी में उसको खर्चा करने की जरूरत नहीं है. वो ऑलरेडी हेल्दी है तो वो रिच है. इसी तरह अगर आप हर चीज में ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, लाइक इफ यू हैव अ कार एंड यू आर सेइंग, आपकी चाहे छोटी सी भी कार हो या आपकी बाइक हो, अभी क्या आपकी स्कूटी हो, आप अगर उसके लिए थैंकफुल हो रहे हैं और आप बोलो कि वाओ थैंक गॉड मेरे पास कार तो है, वरना आप देखो लोगों को सड़क पे चल के जाना पड़ रहा है, बस में जाना पड़ रहा है, बारिश हो रही है एंड दे आर वेटिंग अंडर द ब्रिज और द ट्रीज फॉर द रेन्स टू स्टॉप. अगर आप उस छोटी सी कार के लिए भी थैंकफुल हो रहे हो तो आपकी वो कार अच्छे से चलेगी. ठीक है. अब लोगों ने ऐसा कैसे, लेकिन ऐसा ही है. या बिल्कुल ऐसा ही है. जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड करोगे वो आपके लाइफ में बढ़ता जाएगा एंड धीरे से आपकी ड्रीम कार भी आ जाएगी इफ यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव. या एंड कंप्लेंट इज पॉवर्टी. अगर आपने अभी उस छोटी सी कार के लिए कंप्लेंट कर रहे हो, बारिश हो रही है बट यू आर सीइंग कि आपके कार का एसी नहीं चल रहा है और आप विंडोज आपको अप रखने हैं एंड यू आर फीलिंग स्टफी. हाँ, और आप थोड़ा सा खोल रहे हो तो वो ह्यूमिडिटी आपको अच्छी नहीं लग रही है, बट आप एट सेम टाइम आप दूसरे की कार देख रहे हो, उसका एसी ऑन है, वो अच्छे से जा रहे हो, देखो उसकी कार तो कितनी अच्छी है, उसमें एसी चल रहा है, मेरी कार तो एकदम खटा रहा है, उसमें एसी भी नहीं चल रहा है एंड आई एम फीलिंग सो हॉट. सो व्हाट विल हैपन, जिसका वो एसी नहीं चल रहा था आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब आपकी कार रिपेयर में जाने वाली है, बिकॉज आप उसके बारे में इतनी कंप्लेन कर रहे हो. और हमने रेशियो क्या सीखा है, 1:10. आपने एक कंप्लेन की, आपकी 10 उस कार की चीजें कम हो जाएंगी. ठीक है. एंड ये आपने फेस किया होगा लेकिन अभी तक आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा, बट दिस इज अ फैक्ट because this is based on a universal law. What you give is what you receive. अगर आप कंप्लेंट दे रहे हो आपके लाइफ में और मौके आते ही जाएंगे. और ये जो 1:10 रेशियो है ना, ये आप फिर से पढ़िएगा, ये साइंटिफिकली प्रूवन है. अगर नहीं भी प्रूवन है तो हम उसको टेस्ट करने नहीं जा रहे हैं कि मैंने एक कंप्लेंट की, देखते हैं 10 स्टेप पीछे होता कि नहीं. आई एम जस्ट हैप्पी एक्सेप्टिंग इट एंड नॉट कंप्लेनिंग एंड गिविंग मोर ब्लेसिंग्स. ओके. अच्छा, अब हम लोग ये फीलिंग समझते हैं कि हम लोग लैक ऑफ मनी में कैसे ये फीलिंग्स करते हैं. If there's a lack of money in your life, understand कि इस सारी फीलिंग्स में हमारे लाइफ में और पैसे कमी हुई है. कैसे होता है, that you are feeling worried. अभी लॉकडाउन था, आप चिंता कर रहे होगे ना कि कैसे हम लोग मनी के बारे में चिंता करें. सैलरी नहीं आ रही है, आधी सैलरी आ रही है, कैसे काम चलेगा. यू आर वरिंग अबाउट मनी, यू आर बीइंग एनवियस. उसको तो घर से काम कर रहा है ना, उसको तो पूरे पैसे मिल रहे हैं, मेरा तो बिजनेस बंद है, मेरी शॉप बंद है, मेरे पास कैसे पैसे आएंगे. ही इज सो लकी. आप उसको नहीं बोलोगे लकी, आप बोलोगे कि देखा उसके पास तो पैसे आ रहे हैं ना, इसीलिए उसका घर अच्छे से चल रहा है, पिज्जा भी खा रहे हैं वो लोग, घर पे भी बना रहे हैं, और हम लोग मेरे तो अभी शॉप बंद है. तो आप एनवियस हो रहे हो उससे, अपने आप को कंपेयर कर रहे हो. जेलस भी आप ऐसे ही होते हो, राइट. आप जेलस कैसे होते हो, उसके पास तो ये जो डायमंड रिंग है ना कितनी अच्छी है, मेरे पास तो है नहीं, आप जेलस हो रहे हो. उसके पास इतने पैसे कैसे आए कि उसने ये डायमंड रिंग खरीदी. आप डिसअपॉइंट कैसे होते मनी के एरिया में. आपने इतना काम किया और आपको बोनस कम मिला, यू आर डिसअपॉइंटेड. आपको लगता है मैंने इतना काम किया और इतना कम बोनस मिला मुझे, इतने कम पैसे मिले मुझे. डिस्करेज्ड इज ऑल्सो सिमिलर. आपने इतना काम किया, आपने सपोज डिस्करेज को क्या कैसे, एक तो उसका भी एक एग्जाम्पल जस्ट स्किपिंग, पर डिस्करेज भी अपन ऐसे ही हो जाते हैं कि कुछ अपन ने मेहनत की और हम लोग को उसका फल नहीं मिला. वी गेट डिस्करेज कि नहीं हमने इतने अच्छे से एक प्रोडक्ट बनाया और उसके सेल के लिए हमने इतना एफर्ट किया, बट मेरे को वो मेरा रेट नहीं मिला, हमको कम रेट मिला एंड आई एम फीलिंग डिस्करेज कि इतनी मेहनत करनी चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए कि नहीं. डाउटफुल. आपने अपना लोन के लिए आपने अप्रूवल दिया, माने कोई आपने अपना एप्लीकेशन दिया एंड देन यू आर डाउटफुल कि क्या ये मेरा लोन पास होगा कि नहीं, ये पैसे क्या मेरे को मिलेंगे कि नहीं. आप फियरफुल हो रहे हो कि अभी जो ये मेरी एफडी है ये मेरे क्या आगे मेरे बाद में जब छोटी है तो क्या वो मेरे को पैसे सफिशिएंट होंगे व्हेन आई स्टॉप वर्किंग, विल इट बी इनफ फॉर मी. सो जितना ज्यादा आप मनी के लिए इस टाइप की चिंता करते हो, wherever money is involved, जिनमें आप ऐसी फीलिंग्स दे रहे हो which is a lack of gratitude,
आप हर सिचुएशन में मनी के बारे में कंप्लेंट कर रहे हो, ठीक है। अननोइंगली हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग यही सुनते आ रहे हैं। हम इसमें हमारे पेरेंट्स और एल्डर्स की कोई फॉल्ट नहीं, क्योंकि उनको भी नहीं पता था। बट अब आज हमको रोंडा बर्न बता रही है कि ऐसा करने से हमारे लाइफ में पैसे और कम होंगे, ठीक है। तो आज से आपको ये देखना है कि आप पैसे के बारे में क्या बोलते हो, ठीक है। पहले तो आज आप खुद ही सोचोगे कि हाँ आज हमने पूरा दिन पैसे के बारे में क्या क्या बोला। अभी तक तो हम लोग को समझा था कि पॉजिटिव ही बोलना है, बट अननोइंगली ये वाली सारी बातें हम लोग बोलते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, अभी भी मेरे मुंह से निकलती है, अभी भी। लाइक व्हेन आई एम रीडिंग दिस एंड आई एम थिंकिंग, हाँ बोलते हैं कि वो थोड़ा सा एक्सक्लूसिव है, नो आई एम ट्राइंग टू स्विच, तो अब थोड़ा सा एक्सक्लूसिव वर्ड निकल आ जाता है कि इतना महंगा है वो टॉप, इसकी कोई वैल्यू। हम लोग ऐसी बातें करते हैं। आप देखिए कि आप ऐसी बातें नहीं करते हैं। आप शॉप में गए, ये बैग का इतना प्राइस क्यों है? हाँ, सेम बैग उसमें मिल रहा है दूसरी कंपनी में, क्यों है इसका इतना प्राइस? अननेसेसरी उन्हें इसके पैसे बढ़ा के रखे। आप सब्जी वाले से भी ऐसे ही बात करते हो। हाँ? आपने बोला अच्छा तुम इस रोड पे बैठे हो तो तुमने इसका प्राइस बढ़ा दिया, उस गली में तो इतने रुपए का मिलता है, मॉल में इसका प्राइस देखो, एक एप्पल का 200 रुपीज है, उस क्रॉसिंग पे तो 100 रुपए का मिलता है। आप इस तरीके की बात करते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप पैसे के बारे में कंप्लेंट्स कर रहे हो। सो ईच टाइम यू आर टॉकिंग लाइक दिस अबाउट मनी, okay, you are complaining, you are not being grateful, and whenever you are not grateful, what happens? It goes away from you. Okay, so you have to keep a check what you are speaking and how you are speaking about money. ठीक है, मनी है क्या, पहले हमको बताइए, what is money as per you? Energy. Oh yes, Sangeeta ji, expected, yes. And like what kind of energy? Is it sun energy, wind energy? What kind of energy? आप explain भी करना होगा संगीता जी. Yes. It attracts energy, so it's a positive energy. If you give positive energy, you will get it. If you give negative energy, it goes away from you. Yes, ये तो अच्छी बात है। ये हमको लग रहा है कि हाँ ये ग्रेटिट्यूड का आंसर है, ये मैजिक बुक का आंसर है। बट रियल लाइफ में अगर आपको किसी को समझाना हो कि व्हाट इज मनी, सो व्हाट विल यू से? व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इट इज? इट इज अ सोर्स, ओके, इट इज एन एनर्जी। आपने उसको यूज किया और उसके बदले में आपको कुछ मिला जिससे आप जो आपको चाहिए था, राइट? मनी इज दैट। इफ आई वांट टू बाय सम फूड और अ पिज्जा, आई हैव टू एक्सचेंज दिस एनर्जी। और ठीक है, आपने एनर्जी वाइज समझाया तो अब हम पिज्जा को एनर्जी समझ रहे हैं। बट अगर हम तुरंत ऐसे बोले व्हाट इज मनी, सो इट इज अ मीन्स टू गेट समथिंग दैट यू नीड। या आप पैसे का क्या करते हो? अगर हम आपको फिर से बोले अपनी आंख बंद करिए और एक 10 रुपी का नोट इमेजिन करिए। एक्चुअली क्लोज योर आईज एंड विजुअलाइज अ 10 रुपी नोट। व्हाट डू यू फील? एंड नहीं, ओपन योर आईज एंड टेल मी व्हाट यू फील। आपको क्या मन में आया? I can get a dairy milk. टेरिबल? प्लीज टेरिबल से नहीं बोलना है। अच्छा, नाउ अगेन क्लोज योर आईज and imagine a rasgulla of 10 rupees. Imagine a rasgulla of 10 rupees. It's a rasgulla. It is of 10 rupees. What do you feel? Open your eyes and tell me. You felt nice? आपको लगा हाँ 10 रुपए का ही होता है? आई थिंक 10 रुपए का तो आता ही है, और भी ज्यादा का भी आता है, उतना ही कम का भी आता है, बट 10 का तो आता ही है। या तो आपको कैसा लगा? कुड यू सी आपकी फीलिंग्स किस में आ रही हैं? उस रसगुल्ले में आ रही है कि उस नोट में आ रही है? किस में आ रही है? सो व्हाट इज मनी? इट इज एक्चुअली अ मीन्स टू गेट यू समथिंग दैट यू लाइक। या आपको हम बोलेंगे 2 लाख रुपए, ठीक है, आपके मन में कैसी फीलिंग आएगी? अच्छी फील आएगी, रिच फीलिंग आएगी। अगर हमने आपसे कहा कि 2 लाख में आपकी पूरी फैमिली कश्मीर जा पाएगी क्या? यस, कश्मीर गई है। आपको कैसा लगेगा? आपको क्या ज्यादा याद रहेगा? पूरा लाइफ आपको वो कश्मीर का हॉलिडे याद रहेगा, राइट? फाइटिंग भी की होगी आपने वहां पे, हॉलिडे में सब कुछ की होगी, बट दैट हॉलिडे इज मेमोरेबल। ओके, आपको याद भी नहीं रहेगा कि वो 2 लाख की हॉलिडे थी। हाँ, अगर आप इतने हॉलिडेज में गए हो, जाने के पहले जितना आप मनी का कैलकुलेशन करते हो, लौटने के बाद आपको कुछ वो याद रहता है? और डू यू जस्ट रिमेंबर happy feelings, happy memories whenever you look at the photographs? So money is just a means. Okay, so we'll read more and more about it. First, let's read the chapter. Yeah, so please read. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or
are not acts of gratitude. And the money in your life can never improve, it will worsen. तो अभी आप देखिए, हम लोग मनी के बारे में कंप्लेन करते हैं, आर्ग्यू तो जितने सब्जी वालों से हम लोगों ने किया है, स्पेशली अस इंडियंस, और बाहर जाके भी करते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन ऑल दिस बार्गेनिंग इन बैंकॉक स्ट्रीट्स और एनीवेयर, लाइक जहां भी जाते हैं हम लोग तो फेमस है आई गेस एवरीवेयर ना. पीपल फील कि इंडियन आते हैं और बार्गेन करना चालू कर देते हैं. वो व्हाट इज ऑल दैट? वी आर ऑल बीइंग कंप्लेनिंग अबाउट मनी. अच्छा, इसमें भी आप लोग तो बार्गेन नहीं करें, जो मांगे वो दे दें. इसकी भी एक ट्रिक है, we will share in the session only. Okay, तो जो इस टाइप की फीलिंग्स हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि अरे पैसा नहीं दे रहा है क्लाइंट, पैसा नहीं, इतना लेट से मिल रहा है हमको, पैसा रुपया बोल के आप जो भी फीलिंग उसके संग ऐड कर रहे हो, ठीक है, वो सब एक्ट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड नहीं है. अब बोलोगे ये सब फैक्ट्स है, सब फैक्ट्स हैं, लेकिन हम लोग को उनके बारे में बात डिफरेंटली करनी है, बिकॉज इट इज ऑल क्वेश्चन ऑफ वर्ड्स. वर्ड्स आर क्रिएटिंग योर लाइफ. ओके, जो थॉट्स क्रिएट थिंग्स थे, वर्ड्स तो और भी पावरफुल हैं, क्योंकि वर्ड्स क्या कर रहे हो आप, दुनिया में, आप यूनिवर्स में वो वाइब्रेशन भेज रहे हो, तो वो और ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, वो और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं. अब बोलिए ना, तलाक तलाक तलाक, 3 वर्ड्स ही तो हैं, हो जाता है ना डिवोर्स. या आप एक बार अपने वाइफ को या हस्बैंड को कुछ बोल के देखो गंदा, जितना सॉरी बोल लीजिए उसके बाद, सॉरी इतना स्ट्रांग वर्ड पता नहीं क्यों नहीं है जितना वो वाले सारे वर्ड्स होते हैं, बट आपके लाइफ में चेंज आ जाते हैं ना. तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात, सी व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मनी, इट इज अबाउट एवरीथिंग, बट मनी में सबसे ज्यादा आपको ये ग्रैटिट्यूड का रिजल्ट, इफेक्ट, मैजिक दिखाई पड़ता है. तो जितना ज्यादा आप प्यार से मनी को ट्रीट करोगे, जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड से मनी को ट्रीट करोगे, उतने ज्यादा आपके लाइफ में पैसे आएंगे. ठीक है, एंड वी ऑल वांट मनी, राइट? अपन सबका सपना है मनी मनी मनी. या इस बार हम भूल गए, हमेशा हम सेशन के स्टार्टिंग में ये लाइन बोलते थे, दिस टाइम आई फॉरगॉट. ओके, बट इट इज ट्रू ना, वी ऑल नीड मनी. अब लोग नहीं नहीं हम इतना मनी माइंडेड नहीं है, लेकिन चाहिए सब कुछ. अगर आपको किसी की हेल्प भी करनी है तो आपको क्या चाहिए? मनी चाहिए उसके लिए भी. आपके पास अगर 10 रुपए हैं तभी आप किसी और को 1 रुपए भी दे पाओगे, है ना. आपके पास 100 हैं तो आप उसको 10 दोगे. तो जितने ज्यादा आपके पास हैं उतनी ज्यादा आप किसी और की हेल्प कर पाओगे, है ना. तो मनी इज वेरी गुड, because the more you have, the more you can help others. Let's start. Madhuji, you have to unmute. Yes. No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have. So the money in your life can magically increase. Yeah. तो आज आपकी लाइफ में जैसी भी सिचुएशन हो, it can be very good, it can be medium, जैसी भी है, हम सबको थोड़ा सा और चाहिए ही चाहिए in money matters. या तो अब हम लोग उसके बारे में चिंता करने के बजाय अगर हम लोग ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दें, किसके लिए? अब वो लोग अभी तो है ही नहीं, पहले से कैसे ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दें? वो भी करेंगे, बट अभी जो हम लोग स्टार्ट किए हैं ये जर्नी, उसमें जो हमारे पास है, जो हमको मिल चुका है या अभी तक जो मिला है, पहले हमको उसके लिए अगर हमने ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दिया, क्या किया? रूट्स स्ट्रॉन्ग करनी शुरू कर दी उस ट्री की जिसमें हम चाहते हैं फल, वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में बढ़ने लगेगा. एंड मनी आपको सबसे जल्दी दिखाई देगा. माने लोग बोलते हैं कि अगर आपने प्रॉपरली मनी के बारे में बात की ना, विदिन 24 आवर्स सॉरी within 24 hours it will start giving you results. कैसे देगा? आपको लग रहा होगा, but you have to believe in magic to see magic. Yeah, please read. Whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what she or he has will be taken from her or him. तो ये हम लोग ने अच्छे से समझ लिया है कि जिसके बारे में आप ग्रेटफुल होंगे वो आपके लाइफ में बढ़ता रहेगा, और जिसके बारे में आप डज नॉट हैव ग्रैटिट्यूड, जस्ट आप देखिए रोंडा बन ये भी कह सकती थी, whoever complains, she has not said that, whoever does not have gratitude will, उसके पास जो भी है वो भी उससे ले लिया जाएगा. Yes. Feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. तो अभी क्या है, बिल्कुल यही है, जब हमारे पास नहीं होता है, ठीक है, एकदम फैक्ट है. अगर हम हेल्थ के बारे में भी किसी को बोले ना, क्या उसके पेट में बहुत दर्द है, आप बोले नहीं नहीं तुम ग्रैटिट्यूड करो तो पेट दर्द ठीक हो जाएगा.
बहुत चैलेंजिंग। आप ट्राई करके देखना, हमने तो किया था कि पेट दुख रहा था, अब आप उनको सोचना है अरे ये बहुत ग्रेटफुल होना है, अभी कंप्लेंट नहीं कर सकते, किसी को नहीं बोल सकते कि पेट दुख रहा है, लेकिन वो चैलेंजिंग होता है, बट उसको बोलने से तो कुछ होगा नहीं। आपने कुछ कंप्लेंट की तो आपकी लाइफ और खराबी होने वाली है, ये हमको पता है। तो हमको बहुत अपने आप को प्रैक्टिस करके ग्रेटफुल होना पड़ेगा, ठीक है। एंड जस्ट दिस थिंग दैट जितना ज्यादा हम ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना लाइफ सिचुएशन अच्छी होगी इन एवरी एरिया। यही सोच आपको अपनी एकदम आगे रखनी है, ठीक है। दैट वी हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, दैट वी हैव टू कीप ऑन फेकिंग, तब हमारे लाइफ में मनी डेफिनेटली आएगा ही आएगा। The subject of money can be a tricky one for many people, especially when they don't have enough. So there are 2 steps to the magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day, because you have to scroll down. Because you will continue with the money practice throughout the day. Yeah. So what I will do is, like, again, it's about some visualization like we did yesterday, because ये past के बारे में हम लोग again बात करने वाले हैं, because like we said in the beginning, पहले हम लोग past के बारे में gratitude करेंगे, we'll make our roots stronger so that the tree becomes better. Yeah. तो कल हमने health के बारे में किया था, परसों आपने relationship के बारे में किया था, आज हम लोग money के बारे में करेंगे. So I request all of you, you know, to sit straight. Yeah. एंड बी कंफर्टेबल। आप जहां भी हो बैठ जाना, अगर चल रहे हो तो आंख बंद मत कर लेना, बैठ के क्लोज योर आईज, बी कंफर्टेबल। टेक अ डीप ब्रेथ इन and a long breath out. Take a deep breath in and a long breath out. One more time. A deep breath in and a long breath out. Relax yourself. Do you remember when you were born? Of course not. You have no memory of when you were born. But I'm sure you have seen photographs of the small little tiny baby born in the hospital, bringing joy to your mom and dad. Took your mom to the hospital, your dad, your grandfather. Who paid the money for the hospital? The doctors, the nurses, the medicines for your mom. Who paid the money for all of that? Definitely not you. Thank you, Papa. Thank you, Mama, for all that money you spent on me. You were wrapped in a soft cloth. You had Cerelac, milk powder, the Johnson's baby lotion, the oils. Who paid for all that money? From the hospital, your parents brought you home. In a cab, in a car. Who paid for that? Your grandfather? Your father? Thank you, Mama. Thank you, Papa, for all that money. Thank you so much. You came home. You're living in that house. On the floor, on the bed, but it's your house. Your parents distributed sweets. They were so happy.
joyful. They had a small bundle of love. Who paid for those sweets? Your grandfather, mother, father? You had a help at home. She bathed you, fed you, took care of you, did all those massages. Did Uptan? Who paid for all that? You had small pillows, small blankets, all soft and sweet just for you. People took care that you get the softest of stuff. You had a stuffed toy. You're growing up. Your clothes are getting smaller. You need new toys, medicines, vaccinations, doctor visits. Who paid for all of that? Certainly not you. You were just a little small cuddly baby. Relatives came, they gave gifts, money. Everyone was so happy to see you. Thank you. Thank you, everyone, for all those gifts, for all the money you spent on me. Thank you. You started going to school. Nursery school, pre-KG. You had your small, tiny school bag, a bottle, a small tiffin. Who paid for all of that? Your haircuts. You had a bike, your favorite doll, a drum set, your toy train, your colors. You love doing colors. Scribbling on drawing books or on any paper in the house or on the walls. Who paid for all this? You love chocolate? Sweet? All your yummy things that you had. You were just a baby. You were showered with gifts. Thank you for all the money spent on you. Thank you, Mama. Thank you, Papa, for each and everything you got for me. You remember the first birthday celebrated for you? You remember the photographs? Think back. What were you wearing? A new dress? A new pair of shoes? Remember your birthday cake? Your friends? Your friends also got gifts. Who paid for that? There was chocolate, chips, French fries. Were there idlis in the party? Doshas, sandwiches, all the yummy treats for everyone. Who paid for all that money? All that money spent on those days. The gifts that you got. Thank you, Mama. Thank you, Papa, for that special birthday party. You go to school. You have a new school bag. You have grown up from the nursery school. So you have everything new. New uniform, new colors, new books, new toys. You get haircuts regularly, or you get new pins, new rubber bands, ribbons, new dress every year. Thank you, Mama. Thank you, Papa, for each and everything. Your school fees, who paid for that? Thank you, Mama. Thank you, Papa. You go to hobby classes, color, art classes, dance classes, karate, badminton, your favorite sport, your favorite hobby.
Who got all the stuff for that? Thank you, Mama. Thank you, Papa. Did you play guitar? Or the harmonium? Or you just loved dancing? You had a music system at home? You loved listening to music? You had a television at home? You saw your favorite cartoons? You had electricity at home? The telephone? You could call for anyone. You could speak for hours. Who paid for all of this? Thank you, Mama. Thank you, Papa, for all this. Thank you so much. Did you get hurt? Got a band-aid? Some medicines? Went to the doctor for a fracture? Or just the dentist? Thank you, Mama. Thank you, Papa, for all the bills you paid for them. Thank you. What about your everyday needs? Your toothpaste? Your soap? Your shampoos? Your bed sheets? Your books? The food that you ate? Your favorite sweet? What about the crackers in Diwali? You're all dressed up in new dress again. Having sweets. Are you happy? Thank you, Mama. Thank you, Papa, for all the money that you spent on me. Did you go for a holiday? The whole family? Where did you go? Tirupati? Vaishno Devi? Puri? Or they were only about beaches, hills? How did you go? By trains, cars, flights? Who paid for all that money? You stayed in places. Someone paid for the rent, the hotels, the food you ate, the masti you did. Did you ride on a horse? The swings, rides, or did you go to the Essel World? So much fun you've had. Who paid for that? Each and everything you asked for, your dad got it for you. Your mom got it for you. Thank you, Mama. Thank you, Papa, for that fun, that masti. It was so amazing. You started going to college. You want all the new things, new dresses, new haircut. The best of college. Who paid for all of that? You wanted pocket money to buy your stuff. You wanted to party with friends. Who paid for all of that? Thank you, Mama. Thank you, Papa, for all the things that you spent on me. Thank you. Thank you, Mama. Thank you, Papa, for giving me so much. Thank you for the abundance you shared on me. Keep breathing. Feel the gratitude. Feel their love. They are the best parents. Thank you. Feel it from your heart. Thank you.
to all the rest who got you gifts. Thank you for all the money you got from everyone. Thank you. Keep breathing. Keep feeling. Be grateful. Whenever you are ready, slowly and gently open your eyes. How are you feeling? Someone wants to share? कितनी सारी चीजें याद दिला दी आपने बचपन की. अपू घर. बाय गॉड. तो शायद बंद भी हो गया होगा. Like that. If you want magic in money, you have to feel that. We always took these things for granted. We always used to think this was their duty. सबके पापा करते हैं, सबकी मम्मा करती हैं. But it all costed money. So if you want miracles, not magics, if you want miracles in the area of money, you have to feel grateful for all this. You have to feel. So tomorrow you have to go back in your childhood and start thinking, remembering of everything that you used. Okay, your favorite toy, your favorite book, you only remember. The more you think of that, the more you are thankful, the more money will start pouring into your life. Okay, complaints is one part, but being grateful is a wonderful, wonderful journey. जितना ज्यादा आप पास्ट में जाके अपनी चीजों को याद करोगे, उतना ज्यादा आपके लाइफ में मिरेकल्स आएंगे. बिकॉज वो चीजें पेरेंट्स हमारे लिए ना एकदम दिल से करते हैं. दोज ऑफ यू हुआ पेरेंट्स, आप कैसे करते हो कि बच्चे ने बोला, आप पूरी कोशिश करते हो करने के लिए. आई डोंट हैव किड्स, बट माय नीस, वो कुछ बोलती भी नहीं ना, तो भी मन करता है कि कुछ कुछ उसके लिए लेके ला के लिए देते रहो. तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ करते थे. दे डिड देयर बेस्ट. उनके हिसाब से जो बेस्ट था वो करते थे. Right? So the more grateful you start feeling for everything that was done for you, you just remember, just reflect and start feeling grateful. और उससे जो आपकी फीलिंग जनरेट होगी ना, इट विल बी ऑसम. और वो फीलिंग ही हमारे लाइफ में और मैजिक लेके आएगी. ओके, सो दिस वाज लाइक आपने चैप्टर में पढ़ा ना, देयर आर 2 पार्ट्स टू दिस प्रैक्टिस. तो फर्स्ट पार्ट ये था, तो आपको पूरे दिन आपको खुद अपने पास्ट में जाके याद करना है. सो व्हाटएवर यू आर यूजिंग नाउ, इट्स लाइक यू आर यूजिंग अ पेन नाउ. आपका फर्स्ट पेन आपको याद है, आपकी फर्स्ट पेंसिल आपको याद है, बुक याद है, आपका टॉय याद है, आपको सब याद करके आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा मन में. उसको याद करना ही इज लाइक बीइंग थैंकफुल. आप कॉमिक्स पढ़ते थे, वो सब सोच के स्टार्ट फीलिंग ग्रेटफुल. ओके, एंड ट्रस्ट मी, आपके लाइफ में जो मैजिक होने वाला है ना मनी के एरिया में, सुपर्ब है. अगर हम लोगों ने सिर्फ ये 2 चीजें ही प्रैक्टिस कर ली. ओके, सो यस मधु जी, सॉरी ना, हम हर दिन थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं टाइम से. हाँ, सो आई विल ट्राई एंड लाइक, इज इट ओके थोड़ा सा 10 हो जाता है तो? या ओके, सो फ्रॉम आई थिंक टुमारो शुड वी स्टार्ट अ लिटिल अर्ली. नो, आई थिंक टाइम तो ठीक है. एंड आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर्स आर इजी. सब में विजुअलाइजेशन नहीं है, तो आई थिंक थोड़ा सा टाइम फिर कम लगेगा. ओके, सो माधु जी, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, लेट्स कंटिन्यू. तो ये सब आप फिर से पढ़ लोगे अपने आप, ठीक है? इफ यू वांट, आई वुड just 1 second. Yeah, yes, just 1 second. या आप यहाँ से पढ़िए. As you travel. Where? Yeah, here. Sorry. As you travel. From where? From here, where I have highlighted. Okay. Yeah. Okay. As you travel back through memories of your childhood and youth, you will realize how many things you received that equate to hard-earned money. Be grateful to every single
instance and memory, because when you can feel sincere gratitude for the money you have received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. या सो ये आपने देख लिया, जितना ज्यादा आप पास्ट के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे, सिंसियर ग्रैटिट्यूड ना, उतना ज्यादा आपके फ्यूचर में मनी इंक्रीज होएगा मैजिकली, ठीक है। इट इज गारंटीड बाय यूनिवर्सल लॉ, क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड देंगे तो आपके लाइफ में, और जिसको ग्रैटिट्यूड देंगे वो ही आपके लाइफ में और बढ़ता जाएगा। या दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। ये कल दिन भर आपको ऐसी सोच सोच के जो याद आए, जितने बार याद आए, आप उसके लिए आपको अपना, लाइक हाउ आई डिड इट व्हेन आई वाज टेकिंग अ बाथ, ओके, ऐसे बचपन का सोप याद आ रहा है, वो पेयर्स होता था, यू नो, और कितने पेयर्स, और सिंथॉल, निर्मा तो नहीं होता था, एन से भी कुछ एक और नाम होता था, वो सब याद आ रहे थे। शैम्पू कौन से होते थे, उन सब चीजों को भी जो जो याद करोगे ना आप, और उतना ग्रेटफुल, जब लाइक यू विल जस्ट, इट विल बी कि आपको सब कुछ आ रहा है याद, और उन सब के लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट चीज क्या है, लेट्स सी। To continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill, "Thank you for all the money I have been given throughout my life." या तो आज जैसे आपने, I'll read more. या जस्ट वन सेकंड, जैसे आपने हेल्थ नोट I'll read more. या जस्ट वन सेकंड मधु जी, जैसे आपने हेल्थ नोट बनाया था, वैसे ही आपको क्या करना है, एक नोट लेना है, ठीक है। इट कैन बी अ 50 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, 100 रुपी नोट, बहुत उसको हायर वैल्यू का मत लीजिएगा। आई थिंक विद इन 100 इज ओके, बट इफ यू फील आपको 500 का बनाना है, 200 का बनाना है, आप उसको बना सकते हो। रोंडा बन कह रही है टेक अ डॉलर बिल, बट क्योंकि उन्होंने बाहर लिखी है बुक, इसलिए उन्होंने डॉलर कहा है। हम लोग इस करेंसी में ट्रेड करते हैं, माने आप जिस करेंसी में आप काम अभी आप यूज करते हो, जो अपनी करेंसी, उसमें आपको ये ऐसे, आई हैव स्टक इट विद द सेलो टेप, ठीक है। और आपको जैसे ये जो लाइन है, ये डिट्टो उस पे ऐसे ही लिखनी है, ओके। या सो प्लीज रीड। Take your magic dollar bill with you today and put it in your wallet, purse or pocket, at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. The more sincere you are and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. हाँ, तो आपको क्या करना है, आपने ऐसे नोट में उसको चिपका लिया, और दिन में एटलीस्ट 2 बार, एक बार सुबह, एक बार शाम को, आपको ये नोट हाथ में लेना है, और उसमें जो लिखा है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। एंड ग्रैटिट्यूड फील करना है, यू हैव टू होल्ड इट, ठीक है। अभी तक जो वो हेल्थ नोट था, आपने कहीं पे उसको चिपका दिया है, इसको आपको अपने संग रखना है पूरा दिन, और उसको हाथ में पकड़ के आपको ग्रैटिट्यूड फील करके ये वाला जो इस पे लिखा हुआ है वो पढ़ना है, या। And she is telling us the more sincere, it's like जितनी ज्यादा आप चीनी डालोगे उतना ज्यादा मीठा होगा। The more sincere you feel the gratitude, the faster you will see changes in money in your life. Yes. You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, receive discounts, rebates, or decreases in cost, or receive all kinds of material things that would have cost you money. या तो हमको पहले से नहीं पता, इट्स लाइक जैसे हमको तो पता ही है ना कि सैलरी आएगी इतने वीकेंड, माने लाइक यू नो मंथ एंड पे, हाँ हस्बैंड से इतने पैसे मिलेंगे ही, ये वो वाली बात नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमको कहीं से भी कुछ भी मिल सकता है, कि आप शॉपिंग करने जाते हो, आपने एक सामान लिया, जब आप बिलिंग पे जाते हो तब पता चलता है कि उस पर डिस्काउंट है। ऐसा हुआ है आपके संग कभी? या मीन्स आप ग्रेटफुल थे मनी के लिए। आपने अपना पुराना कोई वॉलेट खोला और उसमें पैसे निकल आए, ऐसा हुआ है आपके संग? आपने जीन्स धुलने में डाली, या किसी और की जीन्स थी, आपको उसमें पॉकेट में पैसे मिल गए, ऐसा हुआ है आपके संग? राइट, मेरे संग तो ऐसा हुआ है, ठीक है। कितने बार मेरे, अक्सर तो मेरे ही होते थे, कितने बार किसी और के होते थे तो ऑफ कोर्स दे देते थे फिर पापा को या मम्मा को। तो आप देखिए कैसे कैसे कहाँ से आपको पैसे मिलेंगे, बट मनी विल स्टार्ट पोरिंग इफ यू आर डूइंग दिस प्रैक्टिस प्रॉपर्ली, ठीक है। या सो प्लीज रीड।
After today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given, never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. या तो कल जब आप ये पूरा दिन प्रैक्टिस करोगे तब आपको हर बार हाथ में ये नोट लेके आपको बोलना है, जो इस पे लिखा हुआ है. कल के बाद आप इसको कहीं ऐसे रख सकते हैं जहां पे आपको ये अक्सर दिखे. शी इज टेलिंग अस जितना बार आप इसको देख के ग्रैटिट्यूड फील करके पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपकी लाइफ में मनी आएगा. ठीक है. अबंडेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड इक्वल्स अबंडेंस ऑफ मनी. तो अगर अबंडेंस में मनी है तो लैक ऑफ अबंडेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड में क्या होगा? स्कैसिटी होगी, पॉवर्टी होगी, राइट. तो आपको देख के इस नोट को देख के बेसिकली इट विल रिमाइंड यू that you have been, so much money has been spent on you, you have to feel grateful. तो उस वही फीलिंग जनरेट करनी है हम लोग को. तो कल के बाद इसको हम लोग कहीं ऐसी जगह रखेंगे जहां, जैसे आज जो आपका हेल्थ नोट था, इट्स नॉट दैट कि वो खत्म हो गया उसको फेंक दो. नो, यू हैव टू पुट इट समवेयर. लाइक इट इज स्टक ऑन माई मिरर. कोई आप अपने फ्रिज पे रख सकते हो, लाइक पोस्ट कर सकते हो, या आप अपने वार्डरोब पे कर सकते हो, या टॉयलेट मिरर में कर सकते हो. तो जहां पे आप उसको देखोगे आपको याद आएगा, वैसे ही इस नोट को भी करना है. ओके, या सो लेट्स कंटिन्यू. If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Because that one complaint will show or even stop the flow of money from the day. Yes, just I'll tell you this much. जैसे उन्होंने बोला ना कि वो बात आते आते हम लोग मुंह में रख लेते हैं. ऐसा होता है कितनी बार यू आर अबाउट टू कमेंट कि उसकी ड्रेस कैसी लग रही है, कि उसका हेयर कट कैसा लग रहा है, ऐसा मन में आया है, बट यू स्टॉप. व्हाई? बिकॉज आप कुछ बोलोगे तो आपको उसका वो कुछ आपको पलट के बोल सकता है या उसको खराब लग जाएगा. तो बिल्कुल वैसे ही जब आप मनी के बारे में बोलने जा रहे हो, जैसे क्या एसी क्यों खुला हुआ है, कितना महंगा बिल आएगा, बोलते हो ना. गीजर रात भर से ऑन है, इलेक्ट्रिक बिल पता है कितना आया था इस मंथ. जैसे जितने बार आप मनी के लिए ऐसी बात बोलने जा रहे हो उतनी बार आपको मन में ये सोचना है, आर यू विलिंग टू पे द प्राइस फॉर दिस कंप्लेंट. बिकॉज इस तरीके की सारी बातें कंप्लेंट्स हैं अबाउट मनी. ठीक है. कभी आपने बोला ना दूध गिर गया, इतना महंगा दूध है गिर गया, इतनी महंगी गैस हो गई है, डीजल का प्राइस देखा है कितना हो गया है. ऑल दीज आर कंप्लेंट्स अबाउट मनी. ठीक है. आप लोगों ने हम तो डीजल के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन उसके संग आपने वर्ड्स कौन से जोड़े हुए हैं? महंगा है, प्राइस है, उसकी उसकी वैल्यू क्या है, ये सब मनी के बारे में कंप्लेंट्स हैं. तो इफ यू फाइंड योरसेल्फ इन अ सिचुएशन, जब माने लाइक सिचुएशन क्या होती है, हम ही बबल करते रहते हैं टू से सच थिंग्स. या सो यू हैव टू कीप अ चेक एंड से गुड थिंग्स ओनली अबाउट मनी. उसको हम लोग को कैसे ठीक से बोलना है, वील डिस्कस इन द कमिंग सेशंस. बट आज हम लोग रीडिंग कर लेते हैं बिकॉज लाइक आई थिंक टाइम हो गया थोड़ा. या सो लेट्स रीड. From this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund or discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have received. या सो नाउ आपको ये प्रॉमिस करनी है. एक तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो हम आपको बोलने वाले हैं, ये हमने अपने लाइफ में एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं. मैंने प्रैक्टिस किया, मैंने लाइक आई एम डूइंग इट ओनली, कि जैसे ही पैसे हाथ में आए, आपने देखा होगा कितने लोग पैसे मिलते हैं वो लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं. उनको कोई पेमेंट आया तो वो ऐसे करते हैं. हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही कभी इधर पैसे छोड़ दिए, कभी उधर पैसे छोड़ दिए. आर यू रिस्पेक्टिंग मनी दैट वे? नो. आर यू बीइंग ग्रेटफुल फॉर इट? नो. इफ यू आर डूइंग लाइक दिस, आपके हाथ में पैसे हैं मतलब आपके हाथ में लक्ष्मी माता है. वी आर ऑल इंडियंस, वी कॉल इट लक्ष्मी, राइट. तो आपके हाथ में लक्ष्मी जी हैं, तो आप उनको डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो? व्हेन यू आर होल्डिंग मनी इन योर हैंड, यू हैव टू हैव गुड फीलिंग्स. माने अगर आप किसी से बात करते करते पैसे दे रहे हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई भी थॉट्स हो सकते हैं आपके मन में, लेकिन आपके हाथ से जो पैसे गए, आपको नहीं पता किस थॉट से वो गए हैं. तो जब आपके हाथ से पैसे जा रहे हैं, आपको अगर बातें करनी है, आप बातें खत्म कर लो फिर पैसे दो. इट्स लाइक जब आप सब्जी वाले से बोल रहे हो इतना महंगा है, आपके हाथ में पैसे नहीं होने चाहिए.
आपको जितना बार्गेन करना है, जितना डिस्काउंट लेना है, जो भी करना है वो सब पहले कर लीजिए। लेकिन जब पैसे हाथ में आए तब आपके मन में होना चाहिए कि जिसके पास ये पैसे जा रहे हैं उसके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आए। ठीक है, जब आपके हाथ से पैसे जा रहे हैं तब आपको उसको ब्लेस करके ही देना, चाहे आप किसी को भी दे रहे हो। ठीक है, आप लोगों ने, हम तो पेटीएम से करते हैं, हम तो गूगल पे से करते हैं, फिर भी जब आप लास्ट में वो कंफर्म, सेंड, क्लिक, जो भी पे वाली बटन दबाते हो ना, उस समय आपके मन में यही होना चाहिए कि जिसके पास ये पैसे जा रहे हैं उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, वो कंपनी हो, डिलीवरी बॉय हो, अमेजोन हो, नाइका हो, कुछ भी हो। when you are clicking that button, when you are giving that money, you have to be blessing that money. आप क्या ब्लेसिंग दे रहे हो कि वो पैसे जो जा रहे हैं, जिसके पास जा रहे हैं उसके लाइफ में अबंडेंस आए, आप उसको ब्लेसिंग्स दे रहे हो। आपके पास वो पैसे घूम के आएंगे ही। कैसे घूम के आएंगे आपको नहीं पता, बट दे विल डेफिनेटली कम बैक मल्टीप्लाइड मेनी टाइम्स। कितना मल्टीप्लाई होगा? जितना फीलिंग से आपने वो ब्लेसिंग दी है। अब तो हो गया ये जो जा रहे हैं पैसे। अब जब पैसे आ रहे हैं, आएंगे कैसे? आपने सब्जी वाले को पैसे दिए या आपने स्पेंसर में पैसे दिए, कहीं भी आपने पैसे दिए, उसने आपको कुछ एक्सचेंज लौटाया, राइट? वो जो पैसे लिए आपको वो ब्लेस करके अपने पास रखने हैं। कैसे? लाइक यू हैव टू सैनिटाइज इट। अभी ठीक है, कुछ सामान आता हम लोग कितना सैनिटाइज किए लास्ट लॉकडाउन में। हाँ, फॉस्फेट था कि फॉस्फोरस था, पोटेशियम सॉरी, पोटेशियम में डुबो रहे हैं, आयनाइज वाटर कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे थे सारी चीजों को। ठीक है, वैसे ही जो पैसे आ रहे हैं बाहर से, आपको नहीं पता उसने कैसे कमाए हैं, उसने ब्लेसिंग से लिए हैं कि नहीं, आपको नहीं पता, बट जो वो पैसे आपके पास आ रहे हैं आप उसको लक्ष्मी समझ के अपने बाकी पैसों के संग रख रहे हो, उसको आपको ब्लेस करके ही रखना है। ठीक है, दैट यू आर प्योरिफाइंग दैट मनी। आप उसको ऐसे बोलो, मिले तो मतलब हाथ में रुपए, मतलब मन में थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जो आपको बोलना है, अपना कोई मंत्र बोलना है, जो भी बोलिए। बट इफ यू हैव गॉट दैट मनी इन योर हैंड, यू हैव टू ब्लेस इट। जब पैसे आपके हाथ में हैं तो कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओनली ग्रैटिट्यूड, ओनली ब्लेसिंग्स, गुड फीलिंग्स में ही आपके हाथ में पैसे होने चाहिए। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है शुरू में, बट ये एकदम इजी हो जाएगा। आपने रिक्शे वाले से बात की या आपने बस वाले से बात की, टैक्सी वाले से बात की, जिससे भी बात की आपने, अगर आप मनी के लिए कुछ भी लोग करते हैं ना, वी आर इंडियंस, हम लोगों ने ये, इंडियंस नहीं, हम लोग तो सब भी करते हैं, सभी जन करते हैं, महंगा है ये वो है। पैसे हाथ से आ रहे हैं या जा रहे हैं, आपको अच्छी फीलिंग्स नहीं रहना है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैं तो क्रेडिट कार्ड से करता हूँ, सेम रूल अप्लाइज। आपने क्रेडिट कार्ड दिया तो आपको मन में उसको बोलना ही है, थैंक यू वेस्ट साइड, थैंक यू शॉपर स्टॉप, जहां भी आप शॉपिंग कर रहे हो, कि ये पैसे इसके पास जा रहे हैं, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो आपने जब वापस लिया रखा तो भी यही सेम चीज है। एनी एक्सचेंज ऑफ मनी मीन्स यू हैव टू बी ब्लेसिंग इट। इज दैट क्लियर? ये हमको कह रही है, मेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ। अच्छा, कुछ भी, ये तो एक बात है, ये बुक में नहीं लिखी है, बट हमने अश्विन मैम से सीखी थी, तो इसलिए हम आपको भी बता रहे हैं। आई हैव बीन फॉलोइंग इट ऑलवेज। इनफैक्ट ये तो अपने मम्मा को भी सिखाया, क्योंकि सबको पैसे चाहिए, एवरीवन डज इट, सो यू हैव टू डू इट एज वेल इफ यू वांट मिरेकल्स इन मनी। एक ही हो गया। सेकंड, जो भी पैसे आ रहे हैं, आपने देखा आपको 100 रुपए मिलने थे वापस, सामने वाले ने बार्गेन करके 50 ही दिए, आप बोल रहे हो 50 रुपए, बस ये जो आपने करके रखे ना पैसे, अब देखिएगा कितने सारे 50 रुपए जाएंगे आपकी लाइफ से। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है, कुछ भी आए। 5 ही रुपए का तो डिस्काउंट मिला है, ये कोई डिस्काउंट होता है? एकदम नहीं। इस टाइप की बात आपको करनी नहीं है। किसी ने आपको शगुन में कुछ पैसे मिलते हैं ना, हाँ, हम लोग कैसे देते हैं, नहीं 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 हमको नहीं चाहिए, एकदम क्या है, मम्मा को दे दीजिए, मेरे को क्या जरूरत है, एकदम भी नहीं बोलना। आपको जो भी मिल रहा है ब्लेसिंग्स के संग, ग्रैटिट्यूड के संग, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। क्या होता है, हम लोग को एनवेलप मिलता है, हम लोग देखते हैं 500 रुपए दिए, ये क्या बात हुई, मेरा गिफ्ट तो इतना बड़ा था। हाउ मेनी ऑफ यू हैव थॉट अबाउट दिस? बचपन से अभी तक आता आपके मन में, ये गिफ्ट वापस दिया उसने, मेरा गिफ्ट तो इतने का था, ये खाना है यहाँ पे, मेरा गिफ्ट तो इतने का था। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू थॉट ऑफ दीज थिंग्स और सेड दीज थिंग्स? ये सब मनी के अगेंस्ट में कंप्लेंट है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो मनी आपके लाइफ में कम होता जा रहा है। स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स दैट आर रिटन हियर। जो भी सर्कमस्टांस है आपके लाइफ में पैसे आ रहे हैं, मींस इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज योर मनी बाय बीइंग ग्रेटफुल। ओके, सो स्टार्ट फॉलोइंग दीज टिप्स और आपके लाइफ में पैसे आएंगे। मेरे लाइफ में तो बहुत आ रहे हैं जब से हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपके में भी आएंगे। ओके, एंड ये सबसे जल्दी दिखाई देता है। अब रिलेशनशिप आपने जो प्रैक्टिस की है उसमें उसके अंदर की फीलिंग्स कैसी चेंज हो रही हैं, वो कितना एक्सप्रेसिव पर्सन है, वो आपको जितना जल्दी नहीं दिखाई देगा जितना जल्दी ये मनी का आपको रिजल्ट दिखाई देगा। ओके, या
Magic practice number 5. Hmm. Magic money number 1. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings, which write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Number 2, sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you received that were provided at no charge to you. या जैसा हमने आज विजुअलाइजेशन किया था, कल आपको दिन भर करना है, ठीक है, दिन भर करना है. आई विल गिव यू सम रिमाइंडर्स, बट बाकी टाइम आपको ही करना है. आप खाना खा रहे हो तो आप अपने बचपन की वो रोटी दाल चावल जो भी आप खाते थे याद करो एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट. ठीक है, जो घर में आपका स्टाफ है आप बचपन की चीजें वो याद करो और उनके लिए ग्रेटफुल हो. ठीक है, या Number 3, as you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. Yeah, so this is very important. All the money which was paid for you, ठीक है, for you, उसको याद करके आपको thankful होना है. Yeah. Number 4, take a dollar bill or other small bill and write on a sticker that you place on the bill in big bold letters, thank you for all the money I have been given throughout my life. Number 5, take your magic dollar bill with you today and at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want, take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given. Yeah. Number 6, after today, but your magic dollar bill somewhere, you will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. Number 7, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes. So is the practice clear? आपको कल दिन भर अपने बचपन की चीजें याद करके आपको ग्रेटफुल होना है उस इंस्टेंस के लिए जिसमें आपके लिए पैसे दिए गए हैं. ठीक है, और जब आप उसको फीलिंग के संग सोचोगे तो और ज्यादा ग्रेटिट्यूड जनरेट होएगा और ज्यादा मनी आपके लाइफ में आएगा. ठीक है, एक ये हो गया. सेकंड, आपको एक नोट लेना है, उस पे ये चिपकाना है, स्टेपल नहीं करना है. या तो आप पोस्टेड पे लिख के चिपका लो, हमने एक सिंपल पेपर को पे लिख के उसको सेलो टिप से हमने चिपका लिया था. ठीक है, एंड उसको दिन में मिनिमम 2 बार एटलीस्ट ट्वाइस उसको देख के आपको पढ़ना है एंड ग्रेटिट्यूड के संग जो लिखा है उस पर पढ़ना है. ओके, एंड उसके बाद जो करना है वील अगेन डिस्कस इट कि आपको हर दिन ही करना है. इफ यू वांट मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ यू हैव टू कीप ऑन रीडिंग इट डेली. एंड लास्टली आपको आज रात में मैजिक रॉक प्रैक्टिस करके सुना है. ओके, सो थैंक यू माधु जी फॉर रीडिंग सो नाइसली फॉर ऑल ऑफ अस. सो लेट्स डू द ग्रेटिट्यूड एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वील टेक इट आफ्टर दैट. या, सो लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, close our eyes and give gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the Supreme Power. Thank you for filling my life with abundance. Thank you for giving me such wonderful parents who fulfilled all my dreams and desires. Thank you to the great Almighty who has given me so many blessings in my life. Thank you for giving me good health and good health to my family and friends. Thank you, thank you, thank you. Okay. So yes, any questions or any clarifications about the practice? I think today's practice is very easy. आप आराम से कर सकते हो, right? अच्छा, सब लोग blessings लिख रहे हैं, है ना? Magic rock कर रहे हैं रात में, हाँ? Yes. एंड ये जो आपको लगता है कि ये जो हेल्थ नोट था उसको आप एक जगह चिपका लीजिए. ठीक है, वो आपको रोज देखना है. हाँ, और ये जो मैजिक नोट है इसको भी ऐसे ही करना है आपको. आप उसको वॉलेट में रख सकते हो या कहीं पे अपने सॉफ्ट बोर्ड पे वार्डरोब के ऊपर कहीं पे भी ऐसे चिपका सकते हो. यस यस, थैंक यू सोनिया. बिल्कुल ऐसे ही, दिस इज वेरी नाइस. उसने कवर के अंदर में रख लिया है, यू कैन डू दैट. या, एंड जितना ज्यादा आप उसको देखोगे इट्स लाइक अ कांस्टेंट रिमाइंडर टू यू. बिकॉज अभी हम लोग न्यू है प्रैक्टिस में, है ना. जब मेडिसिन भी खाना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को एक रिमाइंडर चाहिए होता है ना, दवाई खा लो. कोई बोलता था हम लोग को छोटे में, या आप किसी को बोलते हो. हाँ, कोई भी अच्छी हैबिट को हैबिट बनाने के लिए थोड़ा सा रिमाइंडर चाहिए होता है. तो अभी आपको
शुरू में ये सारे रिमाइंडर्स खुद करने होंगे, ठीक है, हम भी करेंगे लेकिन आपको भी एफर्ट करनी पड़ेगी. यस, सो एनी क्वेश्चन और शेयरिंग? या मेरे पास है ना, ये हम्म। ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो कैन आई टू मेक इट अगेन क्या कल? नो नो नो, जिनके पास है, जो पहले से सेशन में में कर चुके हैं या आपके पास है, तो बस देख लीजिएगा कि उसका कलर क्या है. देखिए कलर रौंडा बन नहीं कह रही है, बट हमारे कंट्री में हम लोग अगर कलर मानते हैं, सो देयर इज नो हार्म ना, आप रेड से लिख सकते हो, बट दैट्स व्हाट आई फेल्ट. आप कलर से लिखिए, ठीक है, ब्लैक से बस मत लिखिए, या और आप जिनका है आप उसी को अपना कंटिन्यू रखिए, आपको न्यू नोट बनाने का जरूरत नहीं है. Yeah. मैंने ग्रीन से लिखा हुआ है. Okay. Will that do? Yeah. Okay. Green is also good. Yes. Okay. Thank you. Yeah. Very good. So just start up. Just like हमने जब ये फर्स्ट टाइम किया था ये वाला, तो एक एक चीज याद आ रही थी छोटे की, ठीक है, कि कैसे पापा ये वाली फुलझड़ी लेके आते थे, या वो वो रॉकेट एंड ये सब लेके आते थे, प्लांट्स रखे रहते थे, लाइक एवरीथिंग. जस्ट गो बैक इन योर चाइल्डहुड एंड स्टार्ट फीलिंग ग्रैटिट्यूड. जिस दिन आपको लगे ना कि आपको पैसे चाहिए, हाँ, थोड़े आपको मनी चाहिए लाइफ में, बस यही वाली प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए. दिस इज द इजीएस्ट. कि आप ये तो कितना इजी हम लोग को सब मिल चुका है, हाँ, ये सबसे इजी है. तो पहले जाके जब हम लोग पास्ट में ही अपनी चीजों को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हमारे लाइफ में 100% आप मनी आना ही आना है. और कैसे कैसे आएगा, यू विल बी अमेज्ड. आप कल करके देखना. लाइक लोग तो शेयर करते हैं अभी थोड़े, आप ही लोग शेयर करना, सम ऑफ देम आर मिसिंग इन एक्शन. तो वो लोग खुद बताएंगे कैसे लाइफ में मनी आता है. ओके, यस, सो आई थिंक लेट्स कॉल इट अ नाइट. Yeah, so good night, sweet dreams, and we'll start the money practice tomorrow. Okay, good night everyone. Thank you. Thank you. Good night. Thank you, Priya. Thank you. Thank you, everyone. Yeah, bye bye.